Hello everyone, welcome back to Literature Decode. In today's video, we will cover the top 50 most important MCQs from the prologue to the Canterbury Tales. So without wasting a single minute, let's get started. Question number 1. Who is the author of the Canterbury Tales? Canterbury Tales के author कौन है? The right option is Geoffrey Chaucer. Question number 2. The Canterbury Tales belong to which period? Canterbury Tale किस टाइम पीरियड से बिलोंग करती है? The right option is medieval time period से. Question number 3. The prologue is written in which form? A prologue to the Canterbury Tale को किस फॉर्म में लिखा गया? The right option is heroic couplet की फॉर्म में prologue to the Canterbury Tale को लिखा गया. Question number 4. The language used in the prologue is. A prologue में कौन सी language यूज की गई है? The right option is Middle English. Middle English में prologue to the Canterbury Tale को लिखा गया है. Question number 5. How many pilgrims are described in the general prologue? General prologue में कितने pilgrims को describe किया गया है? The right option is almost 29 pilgrims को general prologue में introduce करवाया गया. Question number 6. The pilgrimage is from London to. अब pilgrims कहाँ से कहाँ का सफर कर रहे थे? The right option is London to Canterbury Tales. Question number 7. Why do the pilgrims travel to Canterbury Tale? अब pilgrim जो थे वो Canterbury Tale का travel क्यों कर रहे थे? The right option is to visit Thomas Becket Shrine, जो कि एक religious shrine है. इसको visit के लिए pilgrim जो थे वो Canterbury Tale का travel कर रहे थे. Question number 8. The host of the Tabard Inn is. अब Tabard Inn का host कौन है? The right option is Harry Bailey, जो है वो Tabard Inn के host हैं. Question number 9. The narrator of the prologue is. अब prologue के narrator कौन है? The right option is Geoffrey Chaucer himself was the narrator of the prologue to the Canterbury Tale. Question number 10. The knight represents. अब knight किस चीज को represent कर रहा है? The right option is nobility. Question number 11. Which pilgrim is described as a very perfect gentle knight? The right option is knight के तौर पर describe किया गया है. Question number 12. The knight's son is. knight का बेटा क्या कहलाता है? The right option is squire. knight का जो son था वो squire था. Question number 13. The squire is known for. अब squire किस चीज के लिए जाना जाता था? The right option is singing and dancing के लिए. Question number 14. The human carries. अब human ने क्या carry किया हुआ था? Right option is a bow. Question number 15. The prioress is also known. prioress किस वजह से जानी जाती थी? The right option is मैडम एग्लेंटाइन के नाम से भी प्राइरस को जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 16. The prioress speaks. अब प्राइरस किस लैंग्वेज में बात करती थी? The right option is French language. क्वेश्चन नंबर 17. Which pilgrims loves hunting? कौन सा पिलग्रम जो था वो हंटिंग से लव करता था? The right option is मंक का जो करेक्टर था वो हंटिंग से बहुत ज्यादा लव करता था. क्वेश्चन नंबर 18. The friar earns money by. अब फ्रायर किस तरीके से मनी को अर्न करता था? The right option is फ्रायर का जो कैरेक्टर है वो कन्फेशन और पेनेंस के थ्रू अर्निंग करता था. क्वेश्चन नंबर 19. The merchant is recognized by. मर्चेंट किस वजह से रिकॉग्नाइज्ड किया जाता था? The right option is his for beard की वजह से मर्चेंट के कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज किया जाता था. क्वेश्चन नंबर 20. The clerk of Oxford loves. अब क्लर्क जो ऑक्सफोर्ड से अपनी एजुकेशन को गेट करके आया था उसकी चीज से लव करता था? बुक्स एंड लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 21. द क्लर्क इज पुअर बट. अब क्लर्क का जो कैरेक्टर है वो पुअर दिखाया गया है लेकिन उसके पास क्या चीज थी? द राइट ऑप्शन इज वाइस. पुअर है बट वाइस है. क्वेश्चन नंबर 22. द सर्जेंट ऑफ लॉ इज. अब सर्जेंट ऑफ लॉ. अब सर्जेंट ऑफ लॉ क्या था? द राइट ऑप्शन इज एक्सपीरियंस्ड पर्सन. क्वेश्चन नंबर 23. द फ्रैंकलिन रिप्रेजेंट. अब फ्रैंकलिन का जो कैरेक्टर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? द राइट ऑप्शन इज रिच लैंड ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 24. द वाइफ ऑफ बाथ हैड हाउ मेनी हस्बैंड्स. अब वाइफ ऑफ बाथ के जो लीगल हस्बैंड वो कितने थे? द राइट ऑप्शन इज 5. क्वेश्चन नंबर 25. द वाइफ ऑफ बाथ इज फ्रॉम. अब वाइफ ऑफ बाथ किस जगह से बिलोंग करती थी? द राइट ऑप्शन इज बाथ. बाथ जो है वो एक प्लेस का नेम है और वाइफ ऑफ बाथ इसी बाथ प्लेस से बिलोंग करती थी. क्वेश्चन नंबर 26.
द पार्सन इज, अब पार्सन किस टाइप का पर्सन था? द राइट ऑप्शन इज ऑनेस्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 27, द प्लोमैन इज द पार्सन, अब प्लोमैन का पार्सन के साथ क्या रिलेशनशिप था? द राइट ऑप्शन इज ब्रदर, वो इसका भाई। क्वेश्चन नंबर 28, द मिलर टेल्स टेल्स दैट आर, हम मिलर ने जो हमें स्टोरियां बताई वो किस तरह की थी? द राइट ऑप्शन इज डर्टी। क्वेश्चन नंबर 29, द मिलर प्लेस, अब मिलर क्या चीज प्लेस करता था? राइट ऑप्शन इज बैग पाइप्स। क्वेश्चन नंबर 30, द रीव इज थिन एंड ओल्ड, अब रीव जो था वो थिन था और साथ एक ओल्ड मैन। क्वेश्चन नंबर 31, द सोमनर्स फेस इज, अब सोमनर का फेस किस टाइप का था? पिंपली टाइप का उसका फेस था। क्वेश्चन नंबर 32, द पार्टनर सेल्स, अब पार्टनर क्या चीजें सेल करता था? द राइट ऑप्शन इज द फेक रिलाइसिस, अब पार्टनर का जो कैरेक्टर है वो फेक रिलाइसिस को सेल्स करता है। क्वेश्चन नंबर 33, द पार्टनर हेयर इज, अब पार्टनर के हेयर किस टाइप के थे? द राइट ऑप्शन इज लॉन्ग एंड येलो। क्वेश्चन नंबर 34, द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स डिपेंड्स अपॉन, अब जो फिजिक्स के डॉक्टर थे किस चीज पे डिपेंड करते थे? द राइट ऑप्शन इज एस्ट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 35, द कुक इज नाउन फॉर, अब कुक किस वजह से फेमस था? द राइट ऑप्शन इज आर रनिंग सोर के तौर पर उसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, द शिपमैन इज फ्रॉम, अब शिपमैन कहाँ से बिलोंग करता था? द राइट ऑप्शन इज डार्टमोर, ये प्लेस का नेम है और शिपमैन इस जगह से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 37, द म्युनिसिपल वर्क्स फॉर, अब म्युनिसिपल जो है वो किस चीज के लिए वर्क करता था? द राइट ऑप्शन इज टेम्पल, म्युनिसिपल जो है वो टेम्पल के लिए वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 37, द म्युनिसिपल चीज, अब म्युनिसिपल जो है वो किसको चीट कर रहा था? राइट ऑप्शन इज हिज मास्टर, अपने आका को ही चीट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 39, द कैनन ह्यूमैन इज एसोसिएटेड विद, अब कैनन ह्यूमैन किस चीज से एसोसिएटेड था? द राइट ऑप्शन इज अल्कमी, अब ह्यूमैन जो था वो अल्कमी से एसोसिएटेड था। क्वेश्चन नंबर 40, चौसर्स यूजेस आयरनी मेनली टू, अब चौसर्स ने आयरनी को, अब चौसर ने आयरनी को किस चीज के लिए यूज किया है? द राइट ऑप्शन इज मोक पिलग्रम्स के लिए, मतलब के पिलग्रम्स की मोकरी करने के लिए चौसर ने इस आयरनी को मेनली यूज किया। क्वेश्चन नंबर 41, द प्रोलॉग गिव्स अ पिक्चर ऑफ, अब प्रोलॉग हमें किस चीज का पिक्चर दे रहा है? द राइट ऑप्शन इज होल मेडिवल सोसाइटी का। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल जिसको जोफ्री चौसर ने लिखा, ये हमें उस टाइम पीरियड की मेडिवल सोसाइटी की कंप्लीट पिक्चर को हमारे सामने हाईलाइट करती है। क्वेश्चन नंबर 42, चौसर इज नाउन एज, चौसर को किस चीज के लिए जाना जाता है? द राइट ऑप्शन इज फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के लिए चौसर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, द पिलग्रिमेज स्टार्ट्स इन, पिलग्रिमेज ने अपने जर्नी को, अपने ट्रेवल को कब स्टार्ट किया? द राइट ऑप्शन इज अप्रैल, अप्रैल के मंथ में पिलग्रिमेज ने अपने ट्रैवल को कैंटरबरी टेल की तरफ स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 44, द ओपनिंग लाइन्स डिस्क्राइब, अब इसकी जो है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल की ओपनिंग लाइन किस सीजन को रिप्रेजेंट कर रही है? द राइट ऑप्शन इज स्प्रिंग के सीजन को बता रही है जो कि अप्रैल से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 45, द टून ऑफ द प्रोलॉग इज, अब टून किस तरह की है प्रोलॉग की? द राइट ऑप्शन इज ह्यूमरस है, इट मींस दैट कि इसमें कॉमिक और फनी टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द नाइट फाउट इन, अब जो नाइट का कैरेक्टर है वो किन से फाउट कर रहा था? द राइट ऑप्शन इज होली वार्स, और वो किन के साथ कर रहे थे? मुस्लिम के साथ कर रहे थे ताकि अपने लिए एज अ क्रिश्चियन वो अपने लिए होली लैंड को गेट कर सके। क्वेश्चन नंबर 47, द फ्रायर कैरीज, अब फ्रायर का जो कैरेक्टर है वो अपने साथ किन चीजों को कैरी किए होता था? द राइट ऑप्शन इज नाइव्स एंड पिन्स। क्वेश्चन नंबर 48, द क्लर्क स्पीक्स, अब क्लर्क जो है वो किस तरह बोलता था? द राइट ऑप्शन इज लिटिल बट थाउटफुल, अब क्लर्क का जो कैरेक्टर है वो जितना भी बोलता था वो सोच समझकर बोलने वाला एक कैरेक्टर दिखाया गया है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल। क्वेश्चन नंबर 49, चौसर्स मेथड ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज, अब चौसर का किसी भी कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करने का क्या पर्पस था या क्या मेथड? द राइट ऑप्शन इज हिस्टोरिकल, अब चौसर ने जितने भी कैरेक्टर पोर्ट्रे किए हैं उनको स्टार की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है और वो स्टार किस पर कर रहे हैं? उस टाइम पीरियड की सोसाइटी पर। क्वेश्चन नंबर 50,
द प्रोलॉग सर्व्स एज, और प्रोलॉग जो है वो किस चीज के तौर पर सर्व करता है? द राइट ऑप्शन इज इंट्रोडक्शन। इसमें किसी किस्म की कोई एंडिंग नहीं पाई जाती, कोई मोरल लेसन हमें प्रोवाइड नहीं किया गया, कोई इसका प्रॉपर कंक्लूजन नहीं है, बल्कि ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पर इन 29 कैरेक्टर्स के ट्रैवल को लिखा गया, जो उस टाइम पीरियड की सोसाइटी की ट्रू पिक्चर को हाईलाइट कर रही है। आई होप सो कि ये 50 MCQs आपको पेपर में बहुत हेल्प आउट करेंगे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, लाइक इट, शेयर इट with your classmates and subscribe to Literature Decode. See you in the next video.